बढ़ते हैं और बात करते हैं सीएनबीसी आवाज़ और इंडिया के लार्जेस्ट ब्रोकिंग फर्म ग्रो के एजुकेशनल पहल की। दोनों ने मिलकर एक ऐसा ग्राउंड इवेंट किया जिसमें बाजार के दिग्गजों ने सफल निवेशक बनने के अनुभव साझा किए। इस कड़ी में मैंने बात की मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल से। ये पूरा शो हम प्ले करेंगे आज, लेकिन जो अभी की मार्केट है उसकी हाईलाइट का एक अंश आपको सुनाते हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि इस मार्केट में कैश रखें या इन्वेस्ट करें। अरे इतना तेजी वाला मार्केट है, इसमें क्या कैश रखोगे आप? I never had a cash. In fact, I have never seen in thousands of crore portfolio. I have never seen even 10 crores, 20 crores balance. Like Buffett is really surprised me. His half the balance sheet is cash. $350 billion, $325 billion of cash. So Gurudev to kuch alagi trip mein. So, but so actually even before I met Buffett, we heard about him in 94. But even from 87 onwards, I was the most voracious buyer of stock. I used to buy stocks against Wallen. You know what is Wallen? You know that it used to be 15 days trading. So you keep accumulating your trades and then it used to get settled after 15 days. You know, in T plus 20 and all. So during this 15 days, you used to make brokerage. And the brokerage used to come after the settlement. I used to buy stocks against the brokerage. So I was never getting brokerage. I was always getting stocks in turn. So I was always buying stocks continuously. And then when I heard about Buffett and read about him, I got convinced that I'm on the right track. Don't leverage. When you have this kind of a strategy, don't leverage, and you have a market like India where your 15% is guaranteed. I mean, whatever it falls, it may fall, right now it may fall by say 7, 8% it has fallen, another 7%, 10% it may fall. By Gora bech rahe to theek hai. You know, we have to accumulate another 1 lakh, 2 lakh crore sales. But after that what? Once they stop selling, my flow is still on. And it's tough to get back in the... It will get back in 10 days. Just watch it. They may sell for 2 months, 3 months, wherever it goes. But it will come back to new high in 10 days, the moment they stop it. Oh, really? Yeah. Again, they have to sell another 3 lakhs to again depress it. इतना क्यों बेच रहे हैं लेकिन? वो मेरे को नहीं मालूम. Any women investors who want to ask a question? I'll come next to you in the room. During this time, tough time where FIs are selling, you are investing big on portfolio and you see daily. So how do you keep conviction on your stocks? Yeah, it is a better time to buy. When the market goes down by another 20%, it will become the best time to buy. Because ultimately, value of the companies are not changing. Only price is changing. If the FIs are selling what was available for 100 rupees, that has become 50 rupees. So should you buy at 50 rupees or 100 rupees? The same stock. You should buy at 50 rupees, isn't it? So that's what is happening. But it is not about FI selling and all. What is my conviction of the value? What do I think is the fair value of the company? If my fair value of the company is say 150, instead of buying at 100, I am buying at 80 or 70 or something like that. Correct. So my portfolio return will go up, isn't it? Yes. So, but then doing the research behind, doing your numbers, doing your reading, going and meeting the management, trying to figure out the competition, and really understanding everything, how much, fundamentally you have to figure out how much money this company is going to make in next 10, 15 years. Once it gets into your head, run your own Excel sheet. You're a good guy, small, young and very good in software. You can make your own spreadsheet, take the total of the profit it is going to make. If it is significantly lower than that, you're sitting on a winner. आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में निफ्टी की तरफ देखा जाए तो 24,237 जहां पे एक हमें उछाल देखने को मिला था, लेकिन वापस से लग रहा है कि बाजार थोड़ा खिसक के नीचे आ रहा है। लेकिन वापस से अपने जो हमारा सवाल जवाब का सिलसिला था उसको कायम रखते हैं और नेक्स्ट कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। नेक्स्ट कॉलर पुणे से धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग धनंजय जी, क्या सवाल है आपका? इनका ओके
विशाल मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं एक बार चेक करती हूँ। बॉम्बे से हमारे साथ विशाल मल्होत्रा जी जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग विशाल जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास इरिडा शेयर्स हैं आईपीओ लेवल पे 460 शेयर्स एट द रेट ऑफ 32। मुझे ये जानना था, मैं एक्चुअली इन शेयर्स को थोड़ा सा सेल करके थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके इनसे मैं 2 शेयर्स प्रीमियर एनर्जीज एंड वारी एनर्जीज में इनको इन्वेस्ट करना चाह रहा था। तो मैं ये जानना चाहता था एक्सपर्ट से कि अभी क्या सही लेवल है इन दोनों शेयर्स में, प्रीमियर एनर्जीज एंड वारी एनर्जीज में पैसा लगाने का। ओके, तो आइरिडा के शेयर हैं इनके पास और आईपीओ प्राइस से 32 रुपये के लेवल से ही इनके पास होल्डिंग है, 460 शेयर्स हैं। गाबा सर, शिफ्ट किया जा सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट तो यहाँ पे ऑलरेडी दिख ही रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुनाफा वसूली करके बदल लें अपनी जगह। देखिए, ऐसा है कि शिफ्ट करने से पहले जिसमें शिफ्ट करना है तो उसका स्टॉक देखिए। एनर्जी की बात करें तो करीब 3 महीने से लिस्टिंग हुआ है, रिसेंट लिस्टिंग है, अब साइडवेज जोन पर है, पर 850 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, लेकिन इसमें थोड़ी वीकनेस है, तो इसमें इग्नोर कर लेता हूँ मैं इसको। और दूसरा वारी बड़ा करना है, WARE, इज इट? राइट, मैं निकाल कोशिश करता हूँ वारी का, WAR, वारी चार्ट नहीं बोलता है कहीं, स्पेलिंग मेरी गलत तो नहीं है ना? WAREE, डबल ए है, ओहो हाँ, WAREE, डबल ए, वारी एनर्जीज। या मिल गया, बिल्कुल। वारी एनर्जी का चार्ट ठीक लगता है मुझे, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है। 3 दिन से सर्किट चल रहा है नीचे, स्टॉक लेना चाहिए तब जब इसमें स्ट्रेंथ नजर आई ना कि सर्किट ऑन द वे डाउन। ये सर्किट 3 दिन से लग रहा है, दोनों को इग्नोर कीजिए। अब आपका स्टॉक था इरिडा का, ले लेना चाहिए। इरिडा का स्टॉक है, मैं वो निकाल देता हूँ, IRED। ये स्टॉक सही है, अब तक स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, 188 के आसपास कंटिन्यू होल्डिंग है। 188 ड्रॉप होता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, फिर सोचेंगे कौन सा स्टॉक लेना है। वील सी दैट लेटर, नॉट नाउ, बट यू कैन टेक आउट द मनी आउट कंप्लीटली अगर 188 ब्रेक फिश होता है। ओके, तो इधर आइरिडा पे और बता दिया है कि क्या स्ट्रैटेजी इस टाइम पे आपको यूज़ करनी है। मूविंग फॉरवर्ड, हाँ, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं गोरखपुर से अमित पांडे जी। गुड मॉर्निंग अमित जी, क्या सवाल है आपका? सर गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा पहला क्वेश्चन है एक्सिस बैंक पे। मैम 70 स्टॉक्स है मेरे पास एट द रेट 1187। और दूसरा है मैम हिंदुस्तान जिंक, 250 शेयर है एट द रेट 514। और दोनों का मैम 1 से 2 महीने का ही विजन है, तो क्या करना चाहिए? तो शॉर्ट टर्म का नज़रिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक पे, जहाँ पे 70 स्टॉक हैं और 1187 की खरीदारी है। करंट मार्केट प्राइस इज 1161। गाबा सर, 1340 आता हुआ दिख रहा है 2 से 3 महीने में। 1340 तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से बेचने की जगह नहीं है, होल्ड करने की जगह है। यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। एक्सिस बैंक स्ट्रक्चरली लगता है अच्छी जगह पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर जहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना। सिर्फ कंफर्मेशन की जरूरत है, जब 1200 पार कर लेगा एक्सिस बैंक पे कंफर्मेशन मिल जाएगा, फिर तो 1300 पॉसिबल है भाई। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है एक्सिस बैंक, इट्स अ होल्ड। ओके, दूसरा इनका सवाल है हिंदुस्तान जिंक पे, जहाँ पे इनका खरीदारी का भाव है 514 रुपये और 250 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है। 503 इज द करंट मार्केट प्राइस। खरीदारी का जो भाव है ऑब्वियसली इस टाइम करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है। 807 आता हुआ दिखाई दे रहा है 2 से 3 महीने में। अब ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट है हिंदुस्तान जिंक और वो है करीब 500 के आसपास। अगर 500 होल्ड करता है तो फिर 560 भी देखेंगे, पॉसिबल। लेकिन जिसे गिरावट हुई है सिर्फ पॉज है, पॉसिबल है कि 500 भी तोड़े, ये एक पॉसिबिलिटी। अगर ऐसा कुछ होता है तो 375 पॉसिबल। ओके, तो पॉसिबिलिटी है, उम्मीद हमें लगा के रखनी है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अगले कॉलर नैनीताल से हमारे साथ जुड़े हैं अजय चौधरी जी। गुड मॉर्निंग अजय जी। गुड मॉर्निंग कंचन जी। क्या सवाल है आपका? कंचन जी, मेरे पास इंडिगो के 40 शेयर हैं 4658 के रेट से। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसको 1 साल का नजरिया है कि इसमें 6,000 रुपये आ सकते हैं या इसको अभी निकाल देना अपने पोर्टफोलियो से या बेच देना है? ठीक है, तो टारगेट भी उन्होंने बता दिया है कि क्या वो आने वाली अवधि में टारगेट की कामना कर रहे हैं। 6,000 तक के टारगेट गाबा सर देखने को मिल सकते हैं।
4,658 की खरीदारी है, 40 शेयर पोर्टफोलियो में है, 4,015 करंट मार्केट प्राइस चल रहा है और 52 हफ्ते का हाई देखे तो 6,000 तो वहां पे भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आने वाले एक साल में 6,000 दिख सकता है इंडिगो में। देखिए ऐसा है, इंडिगो का जब चार्ट देखें तो जहां से मूव शुरू हुआ है वो है 2,000 जोन से, उसमें चलता गया 3,000, 4,000 और 5,000 के आसपास वहां पर एग्जॉशन होता है। 5,000 कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर तो रुकना चाहिए, नेचुरली रुकना चाहिए, क्योंकि 5,000 एक राउंड फिगर है और वहीं से एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। अब ट्रेड कर रहा है 4,000 के आसपास, यहाँ पर एक सपोर्ट है। यहाँ पर क्या होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि अब तक तो वीकनेस है। अगर यहाँ से बाउंस करेगा तो फिर 5,000 में जाकर अटकेगा। एक बार 5,000 पार कर ले दिल से, तब 6,000 का सोचना चाहिए। अब 6,000 सोचने का हमको हक नहीं है। हक है सिर्फ 5,000 का सोचने का। We'll have to see how it negotiates 5,000, तो अगर वो 6,000 जाता है कि नहीं आता, वो जरूरी है। हम कहते हैं कि नॉर्मली चलो 5,000 के अभी 6,000 में आता है, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। how it negotiates 5,000 वो बहुत जरूरी है। राइट, तो ये थी राय इंडिगो में। थैंक यू सो मच गाबा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बखूबी सारे के सारे जितने भी सवाल आपसे पूछे गए उनके आंसर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एसबीआई ने 1 लाख करोड़ के मुनाफे का बड़ा लक्ष्य रखा है। एसबीआई के चेयरमैन सीएम शेट्टी ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि उनके पास 50 करोड़ से ज्यादा कस्टमर बेस है। हमारे सहयोगी यतिन मोता के साथ बातचीत में उन्होंने 14 से 16% क्रेडिट ग्रोथ की भी उम्मीद जताई है। आइए देखते हैं पूरी बातचीत। भारतीय स्टेट बैंक के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स एक रिकॉर्ड में थे, रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट आया और क्वार्टरली नंबर्स पे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ चेयरमैन शेट्टी साहब जुड़ रहे हैं। चेयरमैन सर बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के साथ बातचीत करने के लिए। अगर हम Q2 के नतीजों की बात करें तो बहुत ही रिजिलियंट रहे रिजल्ट्स। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जहां कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ रहे हैं आपने मेंटेन किया है 3% के ऊपर। किस तरीके से देखते हैं आप आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन परफॉर्मेंस और ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री डिपॉजिट्स को लेके? थैंक यू यतिन जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ये जो Q2 रिजल्ट्स में 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। एक है हमारा डिपॉजिट ग्रोथ रेट जो स्लो डाउन हो रहा था पूरा इंडस्ट्री में, हमने 9% के ऊपर लेके आया डिपॉजिट। एंड जो बेस है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो 9 to 10% ग्रोथ तो जो महत्वपूर्ण होता है। एंड एक माइलस्टोन हमने क्रॉस कर दिया है Q2 में, एक 51 लाख करोड़ डिपॉजिट बेस बन गया है एंड 50 करोड़ से ज्यादा कस्टमर बेस बन गया है। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर कस्टमर्स फॉर ट्रस्टिंग अस। एंड एज फार एज मार्जिन्स आर कंसर्न्ड, हमने ये भी कोशिश किया है कि हम कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स कंटेन करें, कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज भी कंटेन करें एंड जो भी यील्ड एंड एडवांसेस जो भी है उसको बढ़ाने के लिए कोशिश किया है। एंड उसका नतीजा निकल के आया है कि ये जो कंप्रेशन जो हुआ है निम में कम से कम रखे, अभी 4 बेसिस पॉइंट का कंप्रेशन हुआ है। मेरे ख्याल से आगे जाते हैं ये जो कंप्रेशन नहीं होगा, मेरा ये उम्मीद है कि ये जो निम है वो मेंटेन कर सके। जी सर। सर एक कंसर्न इंडस्ट्री का रहा कि कॉर्पोरेट साइड पे लोन ग्रोथ अच्छी हो रही है, ओवरऑल लोन ग्रोथ अच्छी हो रही है, लेकिन डिपॉजिट मोबिलाइज नहीं हो रहे थे। क्या आप होपफुल हैं, क्योंकि आप बहुत सारी नई स्कीम्स चलाते हैं डिपॉजिटर्स के लिए और उसमें से काफी सारी सक्सेसफुल भी हैं, तो क्या सेकेंड हाफ में डिपॉजिट ग्रोथ पिकअप होगा? अभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का ग्रोथ देख लिया तो वो ऑलरेडी डिपॉजिट ग्रोथ क्रेडिट ग्रोथ से ज्यादा हो गया है। बट बड़ा बैंक जैसा एसबीआई है उसमें भी मेरे ख्याल से डबल डिजिट ग्रोथ का डिपॉजिट होने वाला है, मगर क्रेडिट ग्रोथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अब CD रेशियो देखे तो अभी 67-68% रेंज में है। हमारा पोटेंशियल फॉर क्रेडिट ग्रोथ इज स्टिल देयर, सो उसको यूज करना चाहते हैं हम। सो एंड हमारा अपॉर्चुनिटीज भी दिख रहा है हमको, अपॉर्चुनिटीज इन SME, अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ, ये सब डिपार्टमेंट्स में हम क्रेडिट ग्रोथ देख रहा है। इसके हिसाब से मेरे ख्याल से हमारा डिपॉजिट ग्रोथ क्रेडिट ग्रोथ दोनों बराबर चलते रहेंगे। थोड़ा क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा होगा डिपॉजिट ग्रोथ से, हमारा डिपॉजिट का बेस भी ज्यादा है। सो इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ
in my view, will be supported by incremental deposit growth. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।